Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Ali Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the practicals of microbiology and this is experiment number 5. So in the previous experiment we have discussed the preparation of the growth media and that growth media was the nutrient nutrient agar. Now today on our practical we are going to prepare nutrient boards. These two are different. Nutrient agar is in the solid form. So as our second experiment in which we have discussed the growth media and what are them. So we have discussed there are two types of growth media, liquid and solid growth media. So some growth media are for specific bacteria who grow efficiently in a liquidy medium and some grow in a solidy medium. So those who can grow in a solid medium we use nutrient agar, and for those who grow efficiently in a liquid medium we use nutrient both. Okay, so in the previous lecture we have discussed that how to prepare the nutrient agar. So it is solid in nature because the agar, which is the component of it, is a solidifying agent. So it solidifies the whole mixture and prepare a culture media, which is very efficient for the growth of various kind of microorganisms. But now our growth media is in the form of liquid, as you can see here in the picture. So what the apparatus you need for this experiment? So you need a lot of beakers, a lot of conical flasks, test tube, beakers, stirrer, cotton plug, Bunsen burner, autoclave, laminar airflow, incubator and the thread. So the machinery which is used in this experiment is the autoclave, laminar airflow cabinet and the incubator. So what are these machineries? We have discussed in our first experiment. We have discussed what is the autoclave, what is the pressure of it, what is the temperature, what it is used for. Actually it is a sterilizing device in which we put any kind of material, it gets sterilized. If I give examples to you, like you have to sterilize some surgical instrument, so if you have to sterilize it, you will sterilize it into the autoclave. Similarly, laminar airflow, it is a cabinet in which hot air passes, and it is a medium which provides a constant temperature and constant pressure in which you can stand and perform the experiment there. Last is the incubator. Incubator is a very important device in which you have a controlled temperature or controlled oxygen and pH environment. So in this medium you can grow a lot of viruses inside the eggs, you can grow chicken cheeks, and you can grow a lot of things that you want. These machineries are used in that process. So what is the nutrient board? Introduction is given. It provides the nutrition to the microorganisms that are necessary for their growth. Is called a nutrient growth or culture media. So ऐसी प्रिपरेशन जिसके अंदर आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो हम माइक्रोऑर्गेनिज्म से बना रहे होते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक्स है. जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं हम उन्हें बैक्टीरिया से ले रहे हैं या फंजाई से ले रहे हैं. सो अगर हमने एक एंटीबायोटिक की मेडिसिन अगर हमने बैक्टीरिया से बनानी है तो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी होगी, और उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ मीडिया प्रिपेयर करेंगे. अब ये उस बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि उसके लिए न्यूट्रिएंट बोर्ड बनेगा या न्यूट्रिएंट अगर बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड मीडिया पे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है या वो लिक्विड मीडिया पे. अगर वो सॉलिड मीडिया पे अच्छा ग्रो करता है तो हम उसके लिए न्यूट्रिएंट अगर बनाएंगे. अगर वो लिक्विड मीडिया पे अच्छा ग्रो करता है तो हम उसके लिए न्यूट्रिएंट बोर्ड बनाएंगे. तो अब हम इसकी बात करते हैं. सो मीडिया में भी जनरल स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोब, बिल्कुल वही बात उन्होंने कर दी. बैक्टीरिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स. बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी इनकी डिमांड्स हैं. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर द सोर्स ऑफ क्या है उनकी न्यूट्रिशन, मतलब वो कौन से न्यूट्रिएंट मांगते हैं. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड मांगते हैं कि वो कहते हैं कि कार्बन ये वाला सोर्स होना चाहिए. उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है जिस तरह इंसान की ज़रूरियात हैं. एक इंसान को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, हवा, पानी, खाना पीना, ये सब कुछ चाहिए होता है ना.
तो इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। इसी तरह एक बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, उसे कार्बन चाहिए, उसे नाइट्रोजन चाहिए, उसे सल्फ़र चाहिए, उसे फास्फोरस चाहिए, उसे कुछ मिनरल्स चाहिए जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। सो ये मिनरल्स उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। So next they say that the nutrient board is very useful for the growth of large number of microbes। से अगर आप लोगों ने बहुत सारे माइक्रोब बनाने हैं, लाइक एक आपने ऐसी एंटीबायोटिक बनानी है जिसमें आपको बहुत सारे बैक्टीरिया उस चीज़ के लिए चाहिए, तो आप न्यूट्रिएंट बोर्ड बनाएंगे। अगर आपको कम चाहिए बैक्टीरिया के नंबर, लाइक बस 2-3 आपको बैक्टीरिया चाहिए या एक बैक्टीरिया चाहिए, तो उसके लिए आप फिर न्यूट्रिएंट अगर बनाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट बोर्ड इज़ यूज फॉर द माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये माइक्रोबिया की डीकम्पोजिशन कर रहा होता है उनके ग्लूकोज की। सो दिस मीडिया इज सूटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ई कोलाई। सो अगर आपने किसी ई कोलाई को डिटेक्ट करना है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। So meat, peptone and meat extract provide the nitrogenous nutrients। So अब इसकी कंपोजिशन पे वो आ गया है। इसकी कंपोजिशन में ना बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, NaCl है, वाटर है, पेप्टोन है। तो उन्होंने बताया कि मीट एक्सट्रैक्ट यानी बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और जो मीट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले हैं वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन शामिल था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ है NaCl जो है वो उसका ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, और वाटर बाकी हम लोग डालते हैं और ये चीज़ें डालते हैं। अच्छा अगर आप कंपोजिशन में डिफरेंस देखें न्यूट्रिएंट अगर में और न्यूट्रिएंट बोर्ड में, सो न्यूट्रिएंट अगर में बिल्कुल हमने यही डाला था, 3 ग्राम हमने बीफ एक्सट्रैक्ट डाला था, NaCl 8 ही ग्राम ही उधर भी हमने डाला था, यहाँ पर भी डालेंगे। वाटर के 800 ml डाले थे, यहाँ पर भी हम 800 ml डालेंगे। पेप्टोन के भी 5 ग्राम डालेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि न्यूट्रिएंट अर्गर के अंदर हमने क्या डाला था, 15 ग्राम अर्गर डाला था, और यहाँ पर हम विदाउट अर्गर यानी अर्गर के 15 ग्राम हमने यहाँ पर नहीं डालने हैं। अगर हम अर्गर बीच में नहीं डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट बोर्ड बन जाएगा। अगर हम अर्गर डाल देंगे तो हमारे पास न्यूट्रिएंट अर्गर बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसीजर की। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रिएंट अर्गर का देखा था। जस्ट डिफरेंस यही है कि आपने इसके अंदर 15 ग्राम अर्गर नहीं डालना है। सबसे पहले आपने कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, बीकर वगैरह ले लेना है, उनको वॉश कर लें, ड्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने ले लेना है 800 ml आयोनाइज वाटर। ये लाजमी चीज़ है कि आयोनाइज वाटर ही लेना है। जब न्यूट्रिएंट अर्गर हम बना रहे थे तब भी हमने आयोनाइज वाटर ही लिया था कॉनिकल फ्लास्क में। फिर उसके बाद उसको हमने हीट किया था और फिर उसके बाद उसको गर्म करके फिर ठंडा किया था हमने। ठीक है, सो इस तरह यहाँ पर भी ऐसे करना है कि आप इसको हीट अप करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक किस्म का आपने बॉयल कर लेना है। फिर आपने उसे कूल करना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और फिर उसके अंदर आपने बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और NaCl को डाल देना है। ठीक है, डिज़ोल्व कर लें सब चीज़ों को और ऐड वाटर कर लें टू मेक अप द फाइनल वॉल्यूम अप टू 100 ml। ठीक है, तो 1000 ml करने के लिए मज़ीद उसके अंदर आप पानी एडजस्ट कर लेंगे। फिर आपने उसको ऑटोक्लेव पे लेके जाना है, उसको मतलब स्टेरिलाइज़ करना है ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं। ठीक है, पहले आप उसे स्टेरिलाइज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आप अपनी पसंदीदा बैक्टीरिया ग्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेरिलाइज़ नहीं करेंगे तो आपके वो बैक्टीरिया भी और फंजाई भी ग्रो करना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बैक्टीरिया भी करना ग्रो। लेकिन आपको क्या चाहिए था, एक सिर्फ बैक्टीरिया चाहिए था। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको सिर्फ ई कोलाई चाहिए, बट उस प्रिपरेशन के अंदर फंजाई भी ग्रो करना शुरू कर दी, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स है, पोटाशियम का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है। ठीक है, सो उस वजह से हम लोग फिर क्या करेंगे इसके लिए कि हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे। टेम्परेचर हमेशा ऑटोक्लेव का होता है 121 और प्रेशर होता है 15 psi। ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू द टेस्ट ट्यूब्स। अच्छा, अब इसको ट्रांसफ़र करना है टेस्ट ट्यूब पे। न्यूट्रिएंट अर्गर को हमने ट्रांसफ़र किया था पेट्री डिश के अंदर, और लेमिनार फ्लो कैबिनेट के अंदर उसे रख देंगे। फिर हमने उसको इनक्यूबेट के लिए लेके जाना है, और 24 से 48 आवर्स तक हमने इसको इनक्यूबेट करना है, जैसे हमने न्यूट्रिएंट अर्गर को किया था 24 से 48 आवर्स तक। और 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इनक्यूबेटर का।
प्रिकॉशंस क्या रखनी है आपने इसके दौरान, बेक करना है आपने सारे केमिकल्स को एक्यूरेटली एंड यू हैव टू हैंडल द apparatus केयरफुली. So by this way you can prepare the nutrient boards. I hope that you like this video. If you like it, then please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon so that you can get the notification of all the videos which I have uploaded. Thank you so much. Meet you soon in the next lecture. Till up, Allah Hafiz.